ये स्क्रीन दिख रही है आप सबको? ओके. So this is the first question that we will try to solve today. You have to prove that the following language is not regular. Square is the language. Okay. Uh, One thing I want to ask you is to that if you are just watching the lecture, it is advisable that you pick up paper and pen and try to solve the questions with me. It will be you know it will be highly beneficial for you. You will get the essence of the solution. Okay, so the square language इस जो language है square language, इसमें we have words of the form a raised to power n where n is a square. Okay, so this means n is any square. uh, so one square is 1, then 2 square is 4, and then 3 square is 9, and so on. So a, either it will be 1, or it will be repeated 4 times, or 9 times, like that. Okay, you can also call it you know a, let us say n square. Okay, let us call this a n square for all n greater than equal to 1. Okay, a n square for all n greater than equal to 1. So this is a language and we have to prove that this language is नॉट रेगुलर. तो कैसे इस चीज़ को हम करेंगे? तो first thing is this, that you can try solving it using the first version of Pumping Lemma, and but that won't do the job. ठीक है, वो फेल हो जाएगा. कैसे फेल हो जाएगा उसके लिए हम देखते हैं. एक वर्ड हम पिक करते हैं. लेट अस से you pick a word of 1 2 3 4. Okay, let us say you have this uh, word a 9 number of times. Okay, a 9. Okay, now this is a word of the language. Okay, w equals to a9. Okay, now what you can do is that you can break this w a9 into xyz, because according to Pompey lemma, any word of the language can be broken into xyz, where y is not equal to null, and that x, y, and z is always a word in the language. Okay, for n greater than equal to 1. Now let us say you take y to be is, let us say x is your a raised to power 4, is y is a raised to power 5, 4, and z is a. What will happen if you pump a over here?
Okay, so you can break a raised to power 9, which is a word in the language, in this form. X is a raised to power 3, y is a raised to power 6, and z is null. Okay, so a, this x y z is a raised to power 9. Okay. Now what will happen if you pump y again? What you will get? X y y z. X y y z क्या मिलेगा आपको? You pump this y again, you will get a raised to power 12 and 15. Okay, it shouldn't be like this, it should be like this. Check. 2 1. Okay, यहाँ से नहीं होगा, ऐसे होगा ये. चलिए ब्रेक करके देखिए इस A9 को, ताकि जब हम पंप करें तो हमको a रेस्ट 16 मिले. क्या होना चाहिए एक्स वाई जेड ऐसे? ट्राई ब्रेकिंग दिस A9 into XYZ so that when you pump Y in between you get a raised to power 16. कैसे ब्रेक कर सकते हैं एक्स वाई जेड को? Okay, here is one way you can do that. X can be a2 and y can be a raised to power 7 and z can be null. Okay, x and z they can be null. As soon as you pump this y again in between, what do you get? A2, A7 and A7. What is this? 7 7 14 to 16. You again get A16, which is the word of the language. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पंपिंग लैमा जो फर्स्ट वर्जन है वो क्या हो रहा है? इट इज एप्लीकेबल इन दिस फॉर दिस लैंग्वेज स्क्वायर. नाउ विच मीन्स you may fail to, you may conclude that this language is regular, क्योंकि यहाँ पंपिंग लैमा हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्जन जो है वो एप्लीकेबल हो पा रहा है. लेकिन द फैक्ट इज दैट दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज. It is not a regular language. You cannot make a DFA for this language. You cannot make a regular expression. But the first version is failing over here. So that means you have to use the second version of the pumping lemma. So we have to use the second version of pumping lemma over here. तो उसको हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे? E n square. ओके, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर्स के लिए देखा था हमने, जिस तरह हमने प्रूफ किया था, और यही strong version of pumping lemma we use for palindrome. Okay, so here what we took, we assume that the DFA is of some length. Okay, so let us say that there is a DFA which exists, which accepts all the word in the language square. Okay, okay, there is a DFA which accepts all the word in this language, and it is of length n. It is of length n. Okay, let us pick a word which is greater than, whose word length is greater than the number of state in this automata. n से greater लेंथ होनी चाहिए उसकी. So वो क्या हो जाएगा? It will be, it can be anything. ठीक है, we are taking it to be an square. Okay, and an square हमने वो वर्ड लिया है जिसकी लेंथ क्या है यहाँ पे से ज्यादा है नंबर ऑफ स्टेट से. ठीक है, नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ an square? इस वर्ड की क्या लेंथ n स्क्वायर है, और वो क्या है? नंबर ऑफ स्टेट से क्या है? ज्यादा है. ठीक है, now according to the strong version of pumping lemma, this w, it can be, you can break it into 3 substrings x, y, z,
where the length of x plus y is less than the number of states in the automata. Okay. Now what will happen? What will now we can pump y again into this, and you are again you will get a word in the language. We pump y in between x and z. This should be the word in the language. Okay, this should hold, this condition should hold. x y z क्या होना चाहिए? एक वर्ड होना चाहिए लैंग्वेज का. ठीक है. तो अगर ये लैंग्वेज का वर्ड है एक्स वाई वाई जेड, अगर हमने पंप किया बीच में एंड इट टर्न्स आउट टू बी वर्ड ऑफ द लैंग्वेज, इसकी लेंथ क्या होगी? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एक्स वाई वाई जेड? तो जो लेंथ है एक्स वाई वाई जेड की, फर्स्ट थिंग इज दिस, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एन स्क्वायर. द लेंथ ऑफ एक्स वाई वाई जेड इट विल बी ग्रेटर देन एन स्क्वायर. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक्स वाई जेड की लेंथ क्या थी? एक्स वाई जेड क्या था यहाँ पे? ए एन स्क्वायर. उसकी लेंथ क्या थी? एन स्क्वायर. तो एक्स वाई जेड की लेंथ जो एन स्क्वायर थी, तो एक्स वाई वाई हम कुछ ऐड ही कर रहे हैं इसमें, तो ऑफ कोर्स एक्स वाई वाई जेड की लेंथ क्या होगी? एक्स वाई जेड की लेंथ से क्या होगा? ज्यादा होगा. तो एक्स वाई जेड की लेंथ कितनी थी? एन स्क्वायर. एक्स वाई वाई जेड की लेंथ क्या होगी? इट विल बी ग्रेटर देन एन स्क्वायर. ओके. Also what we can do is that we can break this length x y y z into two parts, length of x y z and length of y. x y y z को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? लेंथ ऑफ x y z प्लस लेंथ ऑफ y. तो लेंथ क्या होगी x y z की? इट इज n स्क्वायर एंड देन द लेंथ ऑफ y. ठीक है. इसलिए क्या हुआ? ये लेंथ जो क्या होगी? इट विल बी ग्रेटर देन n स्क्वायर, क्योंकि y की लेंथ इसमें ऐड हो रही है. Okay. Now we do not know the length of y over here. We know that it is not null. Y is not null. It will be greater than 1. But what we can observe from here is that the length of y will be less than n. ठीक है. तो ये पार्ट जो है y, it will be less than n. यानी कि जो n square plus y है, which is the length of x y y z, this is going to be less than n square plus n. इससे छोटा होगा ये, क्योंकि एन स्क्वायर प्लस वाई क्या है? वाई की लेंथ क्या है? एक्स प्लस वाई इज लेस देन एन है. तो वाई की लेंथ क्या होगी? वो भी एन से कम होगी. तो वाई जो होगा इट विल बी लेस देन एन स्क्वायर प्लस एन, विच मीन्स एक्स एन स्क्वायर प्लस वाई विल ऑल्सो बी लेस देन प्लस. इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. ओके. क्योंकि एन स्क्वायर प्लस वाई की लेंथ लेस देन एन स्क्वायर प्लस एन, एन से छोटी है, यानी कि एन स्क्वायर प्लस वाई की लेंथ क्या होगी? इट विल ऑल्सो बी लेस देन एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. हमने इसको ऐसे इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि दिस नाउ बिकम्स n प्लस 1 होल स्क्वायर. ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, इट इज n प्लस 1 होल स्क्वायर. n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n. ठीक है. What do we get is that the length of x y y z, it is greater than n square and also it is less than n plus 1 whole square. अब इससे हमने क्या इन्फर किया? हमने इसे ये इन्फर किया है कि जो हमने पंप किया है स्ट्रिंग x y y z, जो हमको मिला है y को पंप करने पे, उसकी जो लेंथ है, इट लाइज बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर्स. n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में लाई करता है. यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, क्योंकि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, तीसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है. ठीक है. इसका मतलब क्या है? अगर इसको नंबर के फॉर्म में देखें तो जो एक्स वाई वाई जेड है उसकी लेंथ हो सकता है 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में आए. एज एन एग्जाम्पल हम इसको ले रहे हैं. हो सकता है उसकी जो लेंथ है एक्स वाई वाई जेड की, इट कम्स बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर. तो यानी इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होगी. तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में क्या क्या आता है? जैसे 10 है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है. वो सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हमारा स्ट्रॉन्ग पंप लेमा क्या हो गया? यहाँ पे फेल हो गया है. और एक्स वाई वाई जेड जो है, दिस
this x y by z, it is not in the language, but well according to the pumping lemma it should have been in the language. तो x y by z जो था हमारा वो पंपिंग लेमा में, स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा में क्या कर गया, वो फेल कर गया है. और and for this very reason x y z or this language square is not a regular language. It's not a regular language. समझ में आया आपको क्वेश्चन? और आपको इसमें कुछ डिस्कशन में कुछ समझ भी नहीं आया, यू कैन आस्क इन द कमेंट, यू कैन आस्क मी. समझ में आया आपको? प्रूफ कैसे प्रूफ किया हमने? ठीक है, तो क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन का था ये प्रूफ, तो हमको जो हमारा इसको अप्रोच थी, हमारी अप्रोच ये थी कि हमको क्या करना चाहिए था इसमें, हम कुछ उल्टा प्रूफ करके चलेंगे दिमाग में अपने कि हमको ऐसा वर्ड जब हम पंप करें तो हमको ऐसा वर्ड मिले जिसकी लेंथ परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ये हमारा प्रूफ बन जाएगा. और वही हमने करके देखा. यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक बड़ा वर्ड लिया जिसकी लेंथ उससे ज़्यादा थी, डीएफए के स्टेट से ज़्यादा थी, और हमने उसको ब्रेक करके देखा कि जब एक्स वाई जेड अगर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, परफेक्ट स्क्वायर की लेंथ है एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई बाई जेड को जब हम पंप कर रहे हैं, वाई को जब हम पंप कर रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ मिल रही है हमको वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलनी चाहिए. और वही हुआ, परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं मिली, क्योंकि वो एन स्क्वायर और एन प्लस वन स्क्वायर के बीच में उसकी लेंथ लाई करती है. ठीक है, तो पंपिंग लेमा यहाँ फेल हुआ एंड देयरफॉर द लैंग्वेज वाज नॉट रेगुलर. ठीक है, तो ये हमारा एक मैथमेटिकल प्रूफ इसमें आया. ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे यू विल सी कि वो दो कैटेगरी में आएंगे. एक तो ये है मैथमेटिक्स की कैटेगरी, और दूसरी है सिमेट्री की कैटेगरी, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अभी. ठीक है, ये हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, double. Okay, now this language double, you have to prove that the following language is not regular. Double SS, where S belong to sigma star, where sigma is AB. ठीक है, तो डबल में क्या होगा, ए की स्ट्रिंग को दो बार रिपीट किया गया है, एस एंड एस, ए एंड ए, दिस इज एस ए, सो ए इज रिपीटेड ओवर हियर, देन बी बी, देन ए बी, यहाँ पे ये एस है, ये एस है, देन बी ए, यहाँ पे ये एस है, ये एस है. You can pick some other word also like ABB and ABB. ये भी क्या है, एस एस की फॉर्म में है. इसको प्रूव करना है कि रेगुलर नहीं है. ठीक है, अगेन इसमें भी हमारा जो वीकर पंपिंग लेमा है वो काम नहीं करेगा. वी हैव टू यूज अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा. तो कैसे इसको हम करेंगे? ठीक है, तो इसको जो हिंट है हमारे पास, जो जो हमारे पास पूरा इसका जो फिलोसफी रहेगी, इसको प्रोसीजर को आगे बढ़ाने की, वो ये रहेगी कि अगर हम कुछ पंप करें और हो सके हम सिर्फ इसी वाले पहले वाले पार्ट में पंप करें. ठीक है, ये एस एस है, कोई भी वर्ड है एस एस, और हो सकता है कि जब हम पंप करें तो हम सिर्फ पहले पार्ट में ही पंप कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, ये स्ट्रिंग आगे से तो बढ़ेगी लेकिन पीछे से क्या रहेगी, उतनी ही लेंथ की रहेगी. तो वो जो मिरर इमेज जो यहाँ पे मिरर होना चाहिए था, या जो रिपीटेशन होना चाहिए था, वो वैसा रहेगा नहीं. ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको कुछ इस तरह से प्रूफ आगे बढ़ाना है ताकि जब हम वाई को पंप करें तो वाई जो पार्ट हो वो कहाँ से आए, इधर से आए, पहले पार्ट से हो हमेशा. और ये तब कब हो सकता है, जब हमारे पंपिंग लेमा, जब हमारा जो डीएफ है उसका हम कुछ लेंथ लेके चलें. और ऐसा कब होता है, इन द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रूफ, इन द सेकंड पार्ट ऑफ पंपिंग लेमा. ठीक है, तो हम पंपिंग लेमा लेते हैं, एक डीएफए लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ डीएफए व्हिच accepts all the word in this language double, and it is like this, and there is some loop over here, and then it accepts the words. Okay, also we assume that this DFA has n number of states हैं. और हम क्या करते हैं, इससे एक बड़ा वर्ड हम
पिक करते हैं 2n, क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज है और रेगुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, वो है मान के चल रहे हैं हम उसको। और क्या है इसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स ये एक्सेप्ट करेगा वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो वो कितनी भी लेंथ के हो सकते हैं। हमने ऐसी एक लेंथ ले ली 2n। ठीक है, ये 2n जो लेंथ है ये क्या है, इट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सो द वर्ड जो हमने पिक किया है डबल फॉर्म का, उस वर्ड की जो लेंथ है इट इज 2n। ये जो मैं मोड लगा रहा हूँ, दिस इज द लेंथ ऑफ द वर्ड। सो वर्ड की लेंथ क्या है, 2n है। ठीक है, एंड दिस वर्ड इज इट इज ऑफ फॉर्म एस एस। ठीक है, जो वर्ड यहाँ पे होगा इट विल बी ऑफ फॉर्म एस एस, यानी कि इस एस की लेंथ एन होगी और इस एस की लेंथ क्या होगी, एन होगी। दिस एस इज ऑफ लेंथ एन एंड दिस इज एस इज ऑफ लेंथ एन। तब इन दोनों की लेंथ मिला के क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ड हमें जो पिक किया, इट इज ऑफ ग्रेटर, इट इज द लेंथ ऑफ द वर्ड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स, इट इज ऑफ लेंथ 2n। और क्योंकि वर्ड एस एस फॉर्म का है तो जो पहला एस है वो एन में आएगा और बाकी का एस है वो बाकी वाले एन में आएगा। ठीक है, नाउ अगर ये वर्ड w is equal to 2n where the length of the word is greater than the number of states, this is a word in the language, हम मान रहे हैं कि this w is is a word of this language, double, then this w can be broken into, w को ब्रेक कर सकते हैं हम into x y z such that length of x plus y is less than the number of states and x y and z। यहाँ पे n आई गया तो मैं यहाँ पे i लिख लेता हूँ, x I y I z is also a word in the language for I greater than equal to 1। ये हमारा स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो अगर वर्ड एक लैंग्वेज में है और वर्ड की लेंथ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स है तो हम वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं एक्स वाई जेड में, जहाँ पे लेंथ ऑफ एक्स और वाई की लेंथ जो मिला के होगी वो क्या होगी, एन से कम होगी। और जो सारे वर्ड होंगे एक्स वाई आई जेड वेयर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वो क्या होंगे, सबके सब लैंग्वेज में होने चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा वर्ड है एक्स वाई वाई जेड ये भी क्या होना चाहिए, लैंग्वेज में होना चाहिए। लेकिन अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो जो वाई पंप कर रहे हैं, ये वाई हम कहाँ पंप कर रहे हैं, कौन सा पार्ट है, हम क्या कर रहे हैं पहले वाले एस में क्या कर रहे हैं, वाई को पंप कर रहे हैं। ये हमें कैसे पता लगता है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड जो था हमारा इट वॉज ऑफ द फॉर्म एस एस। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट द लेंथ ऑफ एक्स प्लस वाई वॉज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो एक्स और वाई जो है यहाँ पे वो क्या है, वो सबस्ट्रिंग कौन सी है, एस की सबस्ट्रिंग है। क्योंकि एस क्या था, एन लेंथ का था और ये एस कितने लेंथ का था, एन लेंथ का था। तो जो एक्स और वाई की हम बात कर रहे हैं सबस्ट्रिंग की वो किस में है, एस में है। तो एक्स में जो जो भी लेटर्स होंगे वो एस के अंदर होंगे और जो भी वाई के अंदर होंगे वो क्या होंगे, एस में होंगे। और बाकी जो पार्ट है जेड का वो क्या हो सकता है, एस में हो सकता है, बाकी बच्चे हुए एस में हो सकता है। तो जब हम एक्स प्लस वाई, जब हम वाई को वापस पंप करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी आर एडिंग समथिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इन एक्स वाई वाई जेड। जब हम वाई को पंप किया तो हमने क्या किया, वी आर एडिंग समथिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग एस एंड नथिंग इज बीइंग एडेड टू द रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो हम आगे का वर्ड करेंगे, जो आगे पंप होगा एक्स वाई वाई जेड वो क्या होगा, बाकी बचे पार्ट के बराबर नहीं होगा या उसकी जैसे सिमेट्री उसकी नहीं होगी। और इसलिए क्या होगा, एक्स वाई वाई जेड जो होगा इट वोंट बी ऑफ द फॉर्म एस एस, it will be something like s and let us call this s dash, एस एस डैश की फॉर्म में हो सकता है। क्योंकि हमने क्या किया, y जब हमने वापस ऐड किया हमने क्या किया, हमने पहले पार्ट में ही कुछ ऐड कर दिया लेकिन यहाँ के पार्ट में हमने कुछ चेंजेस नहीं करे। तो यू कैन नॉट गारंटी कि जब हम यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा सेकंड वाले पार्ट के बराबर हो। ठीक है, यू कैन नॉट गारंटी दैट, हो सकता है इट विल बी, इट कैन बी डिफरेंट।
एंड देयरफॉर यू विल गेट अ फॉर्म ऑफ द वर्ड एस एस डैश, क्योंकि हमने क्या किया, एस एस के पहले पार्ट में हमने ऐड किया है, सेकंड पार्ट में हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए हमको जो वर्ड मिला क्या मिला है, एस एस डैश फॉर्म का वर्ड मिला है, विच इज नॉट ऑफ द काइंड एस एस, एंड देयरफॉर द पंपिंग लेमा फेल्स एंड दिस लैंग्वेज डबल इज नॉट रेगुलर। यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा फेल हो जाता है। दोबारा बता रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो डीएफई लिया था लेंथ एन, उसकी डबल लेंथ का हमने वर्ड लिया 2n। ठीक है, अब क्या होगा जब वर्ड की लेंथ 2n है और वर्ड एस एस फॉर्म का है, तो पहला वाला एस क्या होगा, उसकी लेंथ एन होगी, और जो सेकंड वाला एस है उसकी लेंथ भी क्या होगी, एन होगी। अब जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में हम डब्ल्यू को लिखते हैं, उसमें एक्स और वाई की लेंथ क्या होगी, इट इज लेस देन एन। ठीक है, तो एक्स और वाई में अपने आप में क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड है। ठीक है, तो एक्स और वाई में जो है, यहाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक्स और वाई में जो है, इसमें क्या मिला हुआ है, क्या है, क्या कंप्राइज करता है, ये एस को कंप्राइज करता है, क्योंकि एक्स और वाई की लेंथ क्या है, लेस देन इक्वल टू एन है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो एस हो सकता है। ठीक है, तो वाई और एक्स और वाई में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एस के ही लेटर्स होंगे, पहले वाले पार्ट के लेटर होंगे। तो जब आप वाई को दोबारा पंप करोगे तो आप क्या करेंगे, एस में हम दोबारा कुछ ऐड कर देंगे, तो आगे वाले एस में तो ऐड हो गया, लेकिन जो सेकंड वाला एस था उसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो सिमेट्री जो क्या होगी, हमारी सिमेट्री बिगड़ जाएगी यहाँ से। जब वाई वाई पंप करेंगे दोबारा से, तो क्या होगा, इस एस की जगह क्या आ जाएगा, कोई नया वर्ड आ जाएगा, एस डैश, और ये पीछे वाला जो एस था पहले लगा हुआ, वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो एस एस की जगह वी विल गेट एस डैश एस। सिमेट्री ब्रेक हो गई है, और आपने वो वर्ड पंप कर डाला है जो लैंग्वेज में था ही नहीं, एंड देयरफॉर द पंपिंग लेमा हैज फेल्ड। और इसलिए क्या होगा, डबल क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी। तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिकल नहीं है, जो एक पैटर्न को हम तोड़ के बता रहे हैं, एक पैटर्न की हम सिमेट्री तोड़ के बता रहे हैं कि अगर हम पंपिंग लेमा अप्लाई करते हैं तो पैटर्न की सिमेट्री टूट जाती है, और वो हमको जो वर्ड मिलता है, इट डजंट फॉलो द पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज, it is something else, and therefore the pumping lemma doesn't apply in that language, and therefore the language is not regular. क्लियर हुआ आपको ये? Want to ask any questions regarding this? अगर आपको समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट, यू कैन आस्क, या पहले वाला ना समझ में आया हो तो यू कैन आस्क, क्योंकि हम देखेंगे कि इस अब हम तैयार हैं कि बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, वो इन्हीं दोनों कैटेगरी में से फॉल करेंगे। इधर इट विल बी मैथमेटिकल काइंड, जो हमने पहले देखा था, दी ए एन स्क्वायर फॉर्म ऑफ वर्ड लैंग्वेज जो थी, परफेक्ट स्क्वायर की जो लैंग्वेज थी, जो मैथमेटिकल नेचर की हमने थी, या तो उस टाइप के होंगे या फिर सेकंड फॉर्म के होंगे, एस एस डबल वाले वर्ड के टाइप के होंगे। तो उन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चंस में ही हम को के ही तरीके से हम बाकी सब प्रूव करेंगे। तो अगर आपको ये दोनों क्लियर होने चाहिए, अगर आपको ये दोनों में से कुछ क्लियर नहीं है, यू कैन वेरी वेल आस्क। ओके, वन मोर एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल टाइप हम देखेंगे, ए एन फैक्टोरियल वाला देखेंगे, वो भी इस टाइप का ही होता है। ठीक है, पहले हम और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको बाकी सब क्लियर हो गया है सत्यम के अलावा? अगर बाकी को क्लियर नहीं हुआ है या कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, यू कैन रिविजिट अगेन। ओके, second, now we come back to the third question. We You have to prove that the following language is not regular. The language is trailing count. So what is trailing count? Any string s followed by a number of a's equal to the length of s. तो ये क्या है आपका, दिस इज, यू कैन राइट इट लाइक दिस। ट्रेलिंग काउंट में क्या होगा, एक तो वर्ड होगा s, और उसके बाद क्या होंगे, नंबर ऑफ एज होंगे, वेयर नंबर ऑफ एज विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ s। तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ओके, s बिलोंग्स टू ए बी स्टार। ठीक है, इस तरह से मैथमेटिकली इस लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं। तो s होगा, वर्ड होगा s, और उसके बाद क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ लेटर्स s में है वो क्या होंगे, उतने नंबर ऑफ एज बाद में आएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक ए था तो बाद में क्या है, ए आया है,
फिर बी था, उतने नंबर ऑफ एज क्या है बाद में आएंगे। फिर यहाँ पे डबल ए था, उतने नंबर ऑफ एज क्या आएंगे बाद में आएंगे। यहाँ पे ए बी था, उतने नंबर ऑफ एज बाद में आएंगे। तो ये जनरली आपको जो ये मिलेगा, इट विल बी इवन इन लेंथ। ओके, तो अब आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि इसका प्रूफ जो है वो कैसा जाएगा यूजिंग स्ट्रॉन्ग पंप लेमा। इसको हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि कोई भी जो वर्ड है इस फॉर्म का, अगर उसमें हम कुछ पंप करें तो हमको दोबारा इस फॉर्म का वर्ड नहीं मिल सकता है। इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अगेन बहुत बड़ा वर्ड लेते हैं और हम क्या करते हैं, हम दोबारा वही दिखाएंगे कि अगर हम वाई को पंप करते हैं, एक्स वाई जेड, अगर हम वाई को पंप करते हैं तो क्या होगा, हम इस वाले पार्ट में पंप कर रहे होंगे कुछ, और इस वाले पार्ट को छूट जाएगा हमसे। तो क्या होगा, आगे एस तो बढ़ रहा होगा लेकिन नंबर ऑफ एज जो ट्रेल करने चाहिए थे वो नहीं बढ़ रहे होंगे। तो अगेन क्या होगा, सिमेट्री ब्रेक होगी और हम प्रूव कर सकते हैं कि जो वर्ड है वो लैंग्वेज में नहीं होगा। ठीक है, ये सेम वैसे ही था जैसे हमने यहाँ पे देखा था इससे पहले डबल वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले आपको वही चीज करनी है, पहले जो इससे पहले क्वेश्चन में की थी कि हम पहले डीएफए अज्यूम करेंगे, दैट देयर इज अ डीएफए which accepts all the word in the language of trailing count। और ये जो डीएफए होगा, let us say it is of length n। okay, and let us say we pick a word w which is greater than the length of n, and let us say that this word is w is of length 2n। ठीक है, वर्ड की लेंथ क्या है, इट्स ग्रेटर देन 2n। ठीक है, अगर ये 2n की फॉर्म 2n लेंथ का वर्ड है तो इसमें क्या होगा, दिस 2n कैन बी रिटन एज n प्लस n। तो जो पहले n कैरेक्टर इसमें होंगे वो क्या होंगे, s होगा, और बाकी के जो n कैरेक्टर क्या होंगे वो होंगे नंबर ऑफ एज जो इन नंबर ऑफ इन s को क्या करते हैं, ट्रेल करते हैं। ठीक है, तो ये हम एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से देख सकते हैं। अगर w की लेंथ 2n है, 2n इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टेट n, तो 2n को आप इस फॉर्म में ले सकते हैं n प्लस n। यहाँ पे जो n है, पहला वाला n, वो किसकी लेंथ है, s की। ठीक है, n यहाँ पे लेंथ है, s की लेंथ है, और दूसरा n क्या है, लेंथ है नंबर ऑफ एज की जो नंबर ऑफ s को क्या करते हैं, ट्रेल करते हैं। अब क्या होगा, अगेन स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला लेमा अप्लाई करते हैं हम। तो वर्ड को आप कैसे ले सकते हैं, w को आप किस फॉर्म में ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ पूरी पंपिंग लेमा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा था मैंने, ये पूरा ये पूरी चीज़ यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वाई वेयर लेंथ ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन एन, देयरफॉर एक्स वाई वाई जेड शुड ऑल्सो बिलोंग टू द लैंग्वेज एल। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड भी लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब दोबारा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड की लेंथ अगर हम देखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड एंड लेंथ ऑफ, यहाँ पे एक्स वाई जेड की लेंथ क्या थी, 2n थी। अब हमने क्या किया यहाँ पे, y को पंप किया है, और x प्लस वाई की लेंथ कितनी थी, लेस देन n थी। अगर x प्लस वाई की लेंथ लेस देन n थी, यानी कि x प्लस वाई में जो सबस्ट्रिंग है उसमें किसका पार्ट था, सिर्फ s का। ठीक है, w was your ss, also w can be broken into, sorry, s a raised to power length of s। और w को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, x y z में। ठीक है, एस की लेंथ कितनी बताई मैंने, 2n बताई थी। यहाँ पे एस की लेंथ कितनी थी, n, और ए की रेस्ट पावर एस की लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ भी कितनी थी, n थी। और यहाँ पे हमको क्या पता लगता है पंपिंग लेमा से कि x प्लस वाई क्या होगा, इट वुड बी लेस देन n। तो x प्लस वाई क्या है, एक्स वाई में क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, s होगा। तो अगर x और y आप देखोगे, इसके लेटर्स मिलाओगे, इट विल बी अ सबसेट ऑफ s। ठीक है, यानी कि जब हम एक्स वाई वाई जेड, एक्स में वाई, एक्स वाई जेड में जब वाई पंप करेंगे बीच में, तो
तो हम क्या कर रहे हैं उस समय, वी आर एडिंग समथिंग बैक टू एस, वहीं पे ऐड हो रहा है, सिर्फ एस पे ऐड हो रहा है और आगे पीछे कहीं ऐड नहीं हो रहा है। तो एस पे हमने कुछ ऐड किया लेकिन नंबर ऑफ एज तो आगे बढ़े नहीं, तो एक्स वाई जेड क्या होगा, इट वोंट बी अ वर्ड ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज व्हेन यू आर एडिंग समथिंग यू आर एडिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। जो डब्ल्यू है हमारा एस ए एस, एस ए रेस्ट पावर एस, लेंथ ऑफ एस, तो उसमें क्या हो रहा है, पहले वाला जो एस है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो ऐड हो रही है लेकिन उतने नंबर ऑफ एज जो ट्रेल करने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ एज क्या है, वो दे आर कांस्टेंट, जो पहले थे वही के वही वो रह गए। तो इसलिए क्या हो रहा है, सिमेट्री हमको यहाँ पे टूट रही है हमारी, और जो हमको वर्ड मिल रहा है इट इज नॉट इन द लैंग्वेज। तो पंपिंग लेमा फेल्स एंड देयरफॉर द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ये प्रूफ देखिए सेम वैसे था जैसे हमने पहला प्रूफ देखा था। हमने यहाँ पे भी हाफ हाफ लेके चले थे और हमने कहा था एक्स वाई जेड में जब हम वाई पंप करेंगे तो हम पहले हाफ में कुछ ऐड कर रहे होंगे, सेकंड हाफ में कुछ ऐड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ क्या था यहाँ पे एस, तो एस में कुछ ना कुछ लेटर ऐड हुए लेकिन नंबर ऑफ एस आगे नहीं बढ़े, और इसलिए एक्स वाई वाई जेड जो था हमारा, एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, it doesn't belong to the language, and pumping lemma fails and therefore trailing count जो language है it doesn't follow the strong pumping lemma and the language is not regular। यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है। आप इन प्रूफ्स को वीक पंपिंग लेमा से प्रूफ नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको पहले दिखाया था जो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करने चले थे, तो वहाँ पे वीक पंपिंग लेमा क्या था, फेल कर रहा था। ठीक है, तो वीक पंपिंग लेमा इन तीनों लैंग्वेज के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, फेल करेगा। तो आपको वीक पंपिंग लेमा यूज नहीं करना है इन क्वेश्चन में, यू हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा। ठीक है, और मैंने आपको तरीका बता दिया क्या तरीका रहेगा इसमें। हमेशा आपको जो इस टाइप के वर्ड आते हैं, ट्रेलिंग काउंट, जहाँ पे सिमेट्री की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे हमेशा क्या करेंगे आप लेंथ लेंगे, लगभग लगभग डबल लेंथ का ले लेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में देखिए हमने 2n लेंथ का लिया है, अगर n वर्ड था हमारा और हमने उसके डबल लेंथ का लिया। अब ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि जब अगर डीएफए में n है, अगर आपने मान लिया है कि चलो डीएफए जो है हमारा उसमें n नंबर ऑफ शीट्स हैं, तो उससे ज्यादा कितना वर्ड मान के चलना है हमको, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है। ठीक है, हमने यहाँ पे हमने पहले आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई थी कि अगर वर्ड एस ए एस फॉर्म का होगा और अगर हम कुछ पंप करें जो सिर्फ एस में पंप हो रहा हो और पीछे पंप ना हो रहा हो ए में, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि वो पंपिंग लेमा उसमें एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसा कब होगा, जब आप क्या लेंगे, नंबर ऑफ लेंथ जो लेंगे एन की वो क्या लेंगे, डबल लेंगे। इसलिए हमने यहाँ वर्ड जो वर्ड की लेंथ ली थी क्या ली थी, 2n ली थी। अब जब 2n ले लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ एन में क्या होगा, एस होगा, सिर्फ एस भरा होगा, और सेकेंड हाफ में क्या होगा, एन में नंबर ऑफ एज होंगे। और हमको पता है कि एक्स प्लस वाई क्या होता है, लेस देन नंबर ऑफ शेड्स होता है। तो जब हम वाई पंप करेंगे तो क्या हो रहा होगा, सिर्फ एस में हम कुछ ऐड कर रहे होंगे। तो इस वजह से क्या होता है, वी विल बी एबल टू प्रूव कि जब हम एक्स वाई जेड में एक्स वाई वाई जेड पंप करते हैं तो जो हमको वर्ड मिलता है वो ट्रिलिंग काउंट के फॉर्म का नहीं होता है, इट इज समथिंग एल्स एंड द पंपिंग लेमा फेल्स। ये डिस्कशन समझ में आया आपको? ये डिस्कशन समझ में आया आप लोगों को? पूछिए जो पूछना है कुछ इसमें, या कभी तक अगर खुद भी समझ में नहीं आया तो वही पूछ सकता है। ओके, ए एन बी एन ए एन फॉर्म का जो वर्ड है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये रेगुलर नहीं होता है। तो हमने ए एन बी एन के प्रूफ देखा है, ए एन बी एन का प्रूफ हमने फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा से ये प्रूफ हो जाता है। तो उसी तरीके से ये इस यहाँ पे भी फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा कैन प्रूव इट। ठीक है, तो दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, इसको आप प्रूफ करके देखेंगे। हिंट मैं दे देता हूँ आपको, हिंट मैंने पहले क्वेश्चन अगर आपने ए एन बी एन वाला क्वेश्चन समझा है तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, तो y ही हमको ढूंढना है इसमें। y कुड बी दिस सॉलिड एज और y कुड बी दिस सॉलिड एज, y कुड बी दिस ए बी और y कुड बी दिस बी ए। ठीक है, तो हमारे पास वी हैव 5 ऑप्शंस। ओके, या तो y होगा, क्या होंगे, फर्स्ट पार्ट वाले सॉलिड एज होंगे ये वाले, या y क्या होगा, सेकंड पार्ट वाले क्या होंगे, ए होंगे हमारे पास, या क्या होगा, इट विल बी बीज इन द मिडल। व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन, एक्स वाई जेड में y क्या हो सकता है, और इट कुड बी दिस सबस्ट्रिंग ए बी और इट कुड बी द सबस्ट्रिंग बी ए। ठीक है, तो आप प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 पॉसिबिलिटीज ऑफ वाई। वाई नल नहीं हो सकता है, वाई इनके इन्हीं में से कुछ होगा, इन पांचों ही सबस्ट्रिंग में कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इसको वापस पंप करेंगे तो कुछ ना कुछ सिमेट्री हमेशा टूट रही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल शो इट टू मी टुमारो। ठीक है, ये कल आप मुझे दिखाएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए आज एक होमवर्क रहेगा। ठीक है, आई विल सी टुमारो। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है ए एन बी टू एन ये भी जो है, इसमें भी हम फर्स्ट वर्जन से प्रूव कर सकते हैं। ए बी टू एन लाइक दिस, यहाँ पे भी क्या होगा, या तो ए विल बी दिस फर्स्ट एज और वाई विल बी दिस एज और वाई कुड बी दिस ट्रेलिंग बीस और वाई कुड बी दिस सबस्ट्रिंग ए बी। इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, जब वाई को पंप करेंगे आप, तो जो वर्ड आपको मिलेगा इट वोंट बी ऑफ द फॉर्म ए एन बी टू एन। ठीक है, सेम सेम वही रहेगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग ग्रामर कैन बी यूज्ड ओवर हियर आल्सो। अगर यही चीज आपको स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा से प्रूव करनी है, मान लीजिए आपको वीक पंपिंग लेमा का पता ही नहीं है, आपको डर लग रहा है कि कहीं भी वीक पंपिंग लेमा यूज करके मैं कोई ऐसा प्रूफ ना कर डालूं जो वैलिड ही नहीं है, तो इस पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा से कैसे प्रूव कर सकते हैं। वो चीज हमने इसको अभी डिस्कस किया है, जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है उसी तरीके से आपको ये प्रूफ करना है। तो आप मुझे बस इसका आइडिया बता दीजिए, क्या आइडिया इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स एंड यू कैन आंसर मी, कैसे इसको आप स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा से प्रूव कर सकते हैं। बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कैसे प्रोसीड करेंगे आप इसको प्रूव करने के लिए यूजिंग स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा, या फिर आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कैसे इसको आप प्रूफ करेंगे। किसी से नहीं हो रहा क्या। यस, प्लीज आंसर, कैसे प्रूव करेंगे आप उसको यूजिंग स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा ए एन बी टू एन। देखिए, अब तक आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हम कैसे इसकी सिमेट्री ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग पंपिंग लेमा। ठीक है, दोबारा इसको आप हाफ में ले लीजिए, यहाँ से यहाँ पे हाफ में लीजिए। अगर हम ये प्रूव कर सकें कि जब हम वाई पंप कर रहे हैं तो वी आर ओनली पंपिंग एज, अगर हम ये चीज प्रूव कर सकें तो हमारा स्ट्रॉन्ग पंपिंग लेमा इसमें वर्क करेगा। ठीक है, तो कैसे मानेंगे, पहले वी अज्यूम दैट द डीएफए एग्जिस्ट which has length greater than n. Okay, let us again
pick a word which has length greater than n. ओके, तो यहाँ पे मैं 2n नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3n. ओके, we are assuming a word which has length 3n. तो DFA का नंबर ऑफ स्टेट्स n है, हमने जो वर्ड लिया हमने क्या लिया है 3n वे का वर्ड लिया. अब जो अपने वर्ड हमने 3n लिया है उसमें उसको इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करें तो क्या होगा, इट इज लेंथ n प्लस लेंथ ऑफ 2n. तो यहाँ पे जो लेंथ n है इसमें क्या है ओनली एज है, और जो लेंथ 2n है इसमें क्या है ओनली बीज है. ठीक है, तो जैसे ही आप इस वर्ड को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स और वाई की लेंथ क्या होगी, इट विल बी लेस देन एन. यानी एक्स और वाई में क्या है सिर्फ एज है, एक्स और वाई में क्या है सिर्फ एज है, या फिर आप बोल सकते हो वाई में क्या है, वाई ओनली कंसिस्ट ऑफ एज. ठीक है, तो जैसे ही हम पंप करेंगे एक्स वाई वाई जेड, तो हम क्या कर रहे हैं एक्स वाई जेड में क्या ऐड कर रहे हैं, सिर्फ ए ऐड कर रहे हैं. तो अगेन क्या हुआ, हमारी फिर सिमेट्री बिगड़ गई, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जितने ए ऐड करने थे उतने ही नंबर ऑफ बीस, उतने ही डबल नंबर ऑफ बीस हमको क्या ऐड करने थे बाद में. लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ ए ऐड करे, बी हमने ऐड करी. इसलिए जो एक्स वाई वाई जेड है दिस विल नॉट बी ऑफ द फॉर्म ए एन बी टू एन. वो यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ ए पंप हो रहे हैं, बी पंप नहीं हो रहा है. ठीक है, ये कोई अलग प्रूफ नहीं था, सेम वैसे प्रूफ किया हमने जैसे हमने पुराने वाले प्रूफ करे थे, उसमें कुछ अलग नहीं किया हमने. क्लियर हुआ आपको? किसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? कोई है जो कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक? हो सकता है ऐसा. पंपिंग लेमा इज नॉट अ वेरी यूजर फ्रेंडली काइंड ऑफ प्रूफ, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ. ठीक है, अगर इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन आता है तो पंपिंग लेमा से कुछ ना कुछ हमेशा पूछा जाता है, और अगर आपको ये प्रूफ आते हैं तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजीली. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है यू कैन वेरी वेल आस्क. यू कैन आस्क इन कमेंट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग. कोई प्रूफ आपको समझ में नहीं आया. ठीक है, सो मैं कुछ और क्वेश्चंस भी इसके कराऊंगा. ठीक है, विल स्टॉप ओवर हियर टुडे. ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इनको आप दोबारा से खुद से करके देखिए, इन प्रूफ्स को समझ के देखिए. एंड ओके, वन थिंग आई वांट टू आस्क, और क्वेश्चंस करवाने हैं आपको इसके, तो कल भी हम वी कैन रिपीट, वी कैन अगेन सी 5 to 6 मोर क्वेश्चंस. दोबारा से क्वेश्चन करा सकता हूँ आपको कल. यू वांट मी टू रिपीट क्वेश्चंस? टाइप यस in comment and I will prepare some more questions on this topic. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया. ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है. कल जो ये पहला क्वेश्चन था वो मैथमेटिकल वाला, उसको हम कल दोबारा देखेंगे. ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ और तरीके से उसको लिखूंगा और उसको दोबारा करेंगे. ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम कुछ और क्वेश्चंस भी हम देखेंगे. तो वी विल रिपीट दिस एक्सरसाइज टुमारो ऑल्सो. ठीक है, आज आप लेट दैट सिंक इन, जो भी हमने आज पढ़ा है उसको आप सिंक कीजिए अपने दिमाग में. We will again arrive at these questions again. Okay. Okay, thank you. We'll meet tomorrow again 11 o'clock.